Hello everyone. So another set, and this set is on arrangement. So before we start, let me give you a brief idea to all the people who are watching it for the first time. So we Catapult classes, we are trying to give lot of things to people so that you guys can properly plan your day and there is nothing which you miss on any day, चाहे वो maths हो, चाहे वो DILR हो, चाहे वो English हो या RC हो. So the day starts at 7 a.m. when we post an article and a newspaper and newspapers on our Facebook group. So these articles are from those genres and websites जहाँ से basically CAT के RCs for the last many years they are picking. तो हम लोग उन्हीं आर्टिकल्स को प्रॉपरली सोर्स करके और डिसाइड करके उनको पब्लिश करते हैं. सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस टू डू. सेकेंड एट 10 AM वी पब्लिश एन RC सेट. सो ये इसका एक PDF होता है जो हम लोग फेसबुक ग्रुप पे अपलोड करते हैं और उसी टाइम पे हम एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे. सी बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर RC आई कैन टेल यू दैट द ओनली वे टू इम्प्रूव अपॉन इट इज टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड from someone who has a better understanding than you. So we upload explanation and this is something which we suggest. Go through the explanation. There are so many words that we have explained, there are sentence structures that we explain. So go through the explanation as well as the PDF. So first try to attempt that set on your own and then go and solve it. Check the explanation on YouTube. So 12 noon we upload a DILR set similar as just like an RC set. So the PDF is uploaded on Facebook group and video is uploaded on YouTube. फिर अगेन 2 बजे हम लोग एक DILR देते हैं. 4 PM we again give you one RC set. At 6 PM we give you guys we give a vocabulary quiz. This quiz is hosted on our Telegram group. और ये quiz काफ़ी important है, काफ़ी fun है to improve your vocabulary. तो जितने भी other management entrance tests हैं, फॉर एग्जाम्पल NMAT हो गया, स्नैप हो गया और ये सारे एग्जाम्स, वहाँ पे वोकेबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड दीज क्विजेज दैट वी कंडक्ट एवरी डे, सो दे आर ऑफ 15 to 20 minutes ड्यूरेशन एंड दे कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस. सो इसमें एंटोनिम्स का टेस्ट होता है, सिनोनिम्स का होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रामेटिकली एरर्ड सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का होता है, वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इन वोकेबलरी क्विजेज में कवर करते हैं. देन एट 8:30 PM वी टेक ईदर ऑन FB और ऑन इंस्टा अ क्विज. ये क्विज डिफरेंट टॉपिक्स का होता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इन सारी जगहों से ये क्विजेस कराते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच वी डू ऑन अ डेली बेसिस. अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो कंडक्ट 2 hour morning live class from 8 to 10. These classes are only for our enrolled students. So if you want to get in-depth knowledge of quants, if you want to get in-depth knowledge of DILR or VARC or anything, you can enroll with us and can try to attend these classes, which are morning classes from 8 to 10. So these are the things which we are trying to give to students. Let's not waste time and start with this set. So the set says 5 students, Bob, Carl, Daniel, Gary and Hug, wrote an examination which had 4 questions. Question 1, 2, 3 and 4. Each question had 3 options, option A, B and C, and each student has to choose one of the 3 options as their answer for each question. The 5 students were sitting in a line, one behind the other, facing the same direction, not necessarily in the same order as mentioned above. So the order may be different of B, C, D, G and H, but they are sitting in a line one behind the other. During the examination, except for the students sitting at the beginning of the line, each student copied the answer to exactly one question from the student immediately in front of him. तो हम कुछ इस तरीके से ग्रिड बना सकते हैं. So 1, 2, 3, 4 and 5. The name of the student, question 1, question 2, question 3 and question 4. So there are 4 questions and there are 5 students.
what they are trying to tell here, that for example, except student sitting at position number 1, everyone copied answer from the person sitting in front of him. For example, if student sitting at position number 1 marked A, B, C and A, student sitting at position number 2 will copy one answer from any of these. So let's say he copied question 3. So both of them will have option C. No other student or no other answer will be matched of student sitting at 2 will be matched with the student sitting at 1. तो इन दोनों के बीच में और कोई मैचिंग नहीं होगी. इसका मतलब यहाँ पे A नहीं आ सकता, यहाँ पे B नहीं आ सकता और यहाँ पे भी A नहीं आ सकता. So these are the information given till now. उसके बाद क्या दिया है? Further, for any pair of students sitting immediately next to each other, exactly one answer was the same. That is the answer that was copied. It is also known that the student sitting in the last position who was not Daniel. So here we do not have D. Marked the answer as option B for question 2. So for question 2 he marked B. ये हटा देते हैं because this is something which we filled randomly. तो जो 5th पोजीशन पे बैठा है उसने क्वेश्चन 2 का आंसर बी मार्क किया है. एंड ये जो भी है इसका नाम हु वाज नॉट इन द लास्ट पोजीशन डिड नॉट मार्क द आंसर टू क्वेश्चन 3 एज ऑप्शन बी. सो हियर वी डू नॉट हैव एच एंड दिस गाय डिडंट मार्क फॉर क्वेश्चन 3 ऑप्शन बी. सो क्वेश्चन 3 में बी नहीं मार्क किया है इसने. आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. Exactly 2 students marked the answer as option B for question 1 and neither of the 2 were sitting at either end. So सिर्फ 2 लोगों ने option B मार्क किया है क्वेश्चन नंबर 1 में. Bob, who was sitting immediately in front of Daniel, marked the answer as option C for exactly 2 questions, while Gary marked the answer as option C only for question 1. अभी हम ये fill नहीं कर सकते. Each of the 4 students who copied the answer did so for a different question. तो जो कॉपी हुआ है वो डिफरेंट क्वेश्चन हुआ है, यानी कि 1 और 2 ने जो कॉपी किया वो डिफरेंट है, 2 और 3 ने डिफरेंट, 3 और 4 ने डिफरेंट एंड 4 और 5 ने डिफरेंट. तो ये 4 पेयर बनेंगे और 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास. एंड ईच स्टूडेंट मार्क द आंसर एज ऑप्शन ए फॉर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, ऑप्शन बी फॉर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एंड ऑप्शन सी फॉर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन. तो सबने ए बी सी कहीं ना कहीं पे मार्क जरूर किया है. The student sitting in the middle marked the answer to question 2 as option C. तो जो बीच में बैठा है उसने question 2 को C मार्क किया है, which he did not copy. The student sitting in the second position who was not Daniel, so Daniel यहाँ पे भी नहीं है, marked the answer as option B for question 3. Option B for question 3, which he copied. तो अगर कॉपी किया है इसका मतलब यहां पे भी बी ही आएगा. अब हमें एच के बारे में पता है कि एच ने क्वेश्चन 3 में बी नहीं मार्क किया था, पहले दिया हुआ था, और हमें पता है कि बॉब डैनियल से जस्ट पहले बैठा है. नाउ लेट्स सी. सो डैनियल कैन नॉट कम हियर, ही कैन नॉट कम हियर. नाउ द ओनली 2 ऑप्शंस दैट आर लेफ्ट फॉर डैनियल इज 3 एंड 4. तो हम पहले डैनियल को 4 पे बैठाते हैं. तो अगर डैनियल यहाँ पे है तो बॉब यहाँ पे आ जाएगा. नाउ फॉर एच कैन नॉट कम इन पोजिशन नंबर 5 एंड एच कैन नीदर कम इन पोजिशन नंबर 1 और 2 बिकॉज एच ने क्वेश्चन 3 का आंसर ऑप्शन बी नहीं मार्क किया है. तो अगर हम डैनियल को यहाँ पे बैठाते हैं तो एच के लिए कोई पोजीशन ही नहीं मिलेगी. तो इसका मतलब डैनियल यहाँ पे नहीं बैठ सकता है. तो कहाँ पे बैठ सकता है? फिर यही ऑप्शन बचता है और ये ऑप्शन हो गया बॉब के लिए. एच के लिए ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो सिर्फ एक ही जगह बच रही है विच इज दिस. नाउ जी एंड सी कैन कम इन दीज पोजिशंस. तो अब हम देखते हैं कि इसको हम और आगे कैसे भर सकते हैं, क्या क्या फिल कर सकते हैं. सो लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स. नथिंग इज एल्स. एक चीज जो हमें पता है कि सबने ए बी सी मार्क किया है. क्वेश्चन 1 में 2 बी हैं और क्या दिया हुआ है?
बॉब ने एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन का आंसर सी मार्क किया है, सो सी 2 बार आया है। नाउ इफ आई सी बॉब, फोकस ऑन बॉब, तो उसके पास ये 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 एंड 4। 2 जगह सी आएगा और जो भी एक जगह बचेगी वहां पे ए आएगा, बिकॉज सबने ए, बी और सी एटलीस्ट एक बार जरूर मार्क किया है। नाउ वी नो दैट सी कैन नॉट कम हियर, बिकॉज जो डेनियल है उसने ये वाला क्वेश्चन कॉपी नहीं किया है, गिवन है कहीं पे। बॉब हु वाज सिटिंग सेकंड कॉलम में, सेकंड पॉइंट जो है, बॉब हु वाज सिटिंग इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ डेनियल मार्क द आंसर एज ऑप्शन सी फॉर एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस, while Gary नहीं last the student sitting in the middle marked the answer to question 2 as option C which he did not copy। ये वाला स्टेटमेंट, तो इसके हिसाब से ये वाला C कॉपीड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे C नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ पे C नहीं आ सकता है तो C के लिए यही दोनों जगह बच रही हैं। सो ऑप्शन 1 पे भी C आ गया, क्वेश्चन 1 पे और क्वेश्चन 4 पे भी, और यहाँ पे क्या आएगा, A आ जाएगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन कॉपीड, और ये दोनों कॉपीड आंसर्स है। तो अब क्वेश्चन 3 फिर से कॉपी नहीं हो सकता है। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे 2 जगह बी आएगा। अब 2 जगह बी ना तो 1 पे आ सकता है ना तो 5 पे आ सकता है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज यहाँ पे और यहाँ पे, और ये दोनों कॉपीड हो गए, यानी कि क्वेश्चन 1 भी कॉपी हो चुका है। अब हमारे पास 1 और 2 ने कॉपी कर लिया है, बी आंसर मार्क किया है, क्वेश्चन 3 कॉपी किया है। 2 और 3 ने अभी तक नहीं किया है, 3 और 4 ने कॉपी कर लिया है, बी मार्क किया है और क्वेश्चन 1 को कॉपी किया है। तो अब 2 और 3 को अगर हम देखें तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता है, बिकॉज एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार कॉपी होगा, तो एक ही जगह बच रही है, दैट इज दिस वन, एंड यही कॉपीड होगा। तो यहाँ पे सी आ गया और ये सी, और क्वेश्चन 4 भी कॉपी हो गया और आंसर मार्क किया गया है सी। नाउ फॉर रो नंबर 3 दैट इज फॉर डेनियल, उसको ए, बी और सी तीनों मार्क करने थे। सी 2 जगह आ चुका है, एक जगह बी आ चुका है, तो यहाँ पे एक ही स्पॉट बच रहा है विच इज ए, तो यहाँ पे ए आ गया। नाउ फॉर 4th पर्सन हु इज सिटिंग हियर, ना तो अगर हम 4th और 5th को देखें तो ना क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी हो सकता है, ना क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी हो सकता है, ना क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी हो सकता है, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे बी आएगा और ये दोनों कॉपीड है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे अब बाकी चीजें जो बची हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के कॉलम में सिर्फ 2 बार बी आना था, वो हमने कर लिया, यानी कि अब इसमें ए या सी आएगा और इसमें भी ए या सी आएगा। नाउ सी कैन नॉट कम हियर, अगर सी यहाँ पे आ जाएगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो सी कैन नॉट कम हियर, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एंड गैरी के बारे में दिया हुआ है, वाइल गैरी मार्क द आंसर एज ऑप्शन सी ओनली फॉर क्वेश्चन 1, ये वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जी आ गया और यहाँ पे हु इज लेफ्ट, कार्ल इज लेफ्ट आई थिंक, कार्ल, या सो यहाँ पे कार्ल आ गया। अब गैरी ने सिर्फ इस क्वेश्चन में सी मार्क किया था, तो यहाँ पे सी नहीं कर सकता, तो या तो बी करेगा या तो ए करेगा। अब वी हैव टू सी एंड फाइंड आउट कि यहाँ पे बी आता है या ए आता है। तो देखते हैं, पहले बाकी चीज़ें फिल कर दें। सो पहली वाली रो को देखते हैं, तो यहाँ पे सी आना है किसी जगह पे, क्योंकि ए, बी और सी सारे ऑप्शन सबने मार्क किए हैं। सी यहाँ पे नहीं आ सकता है, अदरवाइज ये कॉपीड आंसर हो जाएगा। तो सी कहाँ पे आएगा, सी के पास एक ही जगह बचती है, एंड दिस इज दिस। नाउ हियर वी कैन हैव ए और बी और सी, सी नहीं आ सकता, ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो अभी इसको नहीं फिल करेंगे, विल वेट फॉर दैट। बाकी चीज़ें पहले देख लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एच, यहाँ पे हमारे पास ए और सी दोनों आने चाहिए, क्योंकि बी 2 बार आ चुका है, तो एक जगह ए आएगा और एक जगह सी आएगा। नाउ वी कैन नॉट कॉपी, बिकॉज ये भी कॉपी हो चुका है, ये भी कॉपी हो चुका है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 5th रो की बात करें, तो 5th रो में हमें इन दोनों जगहों पे ए या बी फिल करना है, बिकॉज इट इज गिवन दैट गैरी ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में सी मार्क किया था, तो यहाँ पे ए या बी फिल करना है।
ए ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे ए तो नहीं फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, बी फिल करेंगे, और ए को कहीं ना कहीं तो आना ही है तो ए को यहाँ पे हम फिल कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा फिल हो गया है, सिर्फ ये वाली सेल हमारी नहीं फिल हुई है। तो देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी देन वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स अगेन एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या फिल करना है, अदरवाइज वी कैन इग्नोर दैट। तो देखते हैं, लेट्स गो टू क्वेश्चंस। What is the answer marked for question 4 by the student sitting in the last position? So for question 4, student sitting in the last position has marked option B. So answer is A. If the positions in which the students are sitting are represented as 1 to 5 from first to last, for how many students is their position the same as the number of the question for which they copied the answer? तो फॉर एग्जाम्पल सी की पोजीशन है 1 बट इसने कॉपी किया है 3, तो ये नहीं हो सकता। बी की पोजीशन है 2 और इसने कॉपी किया है 3 एंड 4, तो ये भी नहीं हो सकता। डी की पोजीशन है 3 और इसने कॉपी किया है 1 एंड 4, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 की पोजीशन है, एच की पोजीशन है 4 और इसने कॉपी किया है 1 एंड 2, तो ये भी नहीं हो सकता। और जी की पोजीशन है 5 और इसने कॉपी किया है 2, तो ये भी नहीं हो सकता। सो इसका आंसर क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिड बोथ डेनियल एंड द स्टूडेंट सिटिंग इन द फर्स्ट पोजिशन मार्क द सेम ऑप्शन एज देयर आंसर? सो वी नो दैट दे मार्क द सेम आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। सो both Daniel and the student sitting in the first position, so they marked same for question number 2 and they cannot so person sitting in position number 1 cannot mark C here। तो अगर ये हमें नहीं भी पता है तो भी हमें इतना पता है कि इसमें A और B ही आ सकता है, C तो नहीं ही आ सकता, तो ये सेम नहीं हो सकता है। So the only thing which will be same will be question number 2, that is option number C, डैनियल ने भी मार्क किया है और जो फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है उसने भी मार्क किया है। So answer will be question number 2। फोर्थ है, which option was marked by the maximum number of students for question 4? तो question 4 में C 2 लोगों ने मार्क किया है और A और B में से कोई एक तो यहाँ पे आएगा ही, तो वो भी 2 लोगों ने मार्क किया है। Now options are option C, option A and option B, and the last one more than one of the above. So we'll go for D, which is more than one of the above, because ये तो होगा ही होगा और इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो A होगा या फिर B होगा। So my answer is option number D. So I hope you enjoyed the set, और अगर सबने लाइक किया है, एक्सप्लेनेशन पसंद आया है एंड यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो। एंड अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स इट गाइज, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय योर डे।